ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں فائز بھائی؟ وہ اس وقت دلہن کے جوڑے میں تھی۔ بس فائز اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے سرپرائز دینے جا رہا تھا۔ وشما اس بات سے بے خبر تھی کہ کچھ پل بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ فائز اس اندھیرے کمرے میں بند کر کے واپس جا چکا تھا۔ اس کی بارات واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فائز کے کمرے سے بری حالت میں ملی تھی۔ ہر کوئی اس کو قصوروار کہہ رہا تھا۔ گھر والوں نے یہ گناہ چھپانے کے لیے اس کی شادی فائز سے کروا دی تھی، جس نے اپنی مرحوم بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وشما کی زندگی برباد کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ وشما کے پاس آیا اور آتے ہی وشما دلہن بنی پارلر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تک کوئی بھی پارلر سے لینے اسے نہیں آیا تھا، اور اب تو رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ وشما بار بار اپنے فون پر ٹائم دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل پر فائز کا فون آنے لگا۔ وشما نے فوراً فون کان سے لگایا تھا۔ وشما، میں پارلر کے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ۔ دوسری جانب سے فائز کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ وشما نے حیرانی سے فون کی طرف دیکھا۔ ماما نے تو اس سے کہا تھا کہ بھائی اسے لینے آئیں گے، پھر فائز کیوں لینے آئے تھے؟ وشما کو کھویا ہوا محسوس کر کے فائز نے ایک بار پھر سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ وشما، کہاں کھو گئی ہو؟ میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ فائز نے اس بار ذرا غصے سے کہا تھا۔ فائز کے غصے سے ہمیشہ سے ہی وشما کی جان نکلتی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ باہر ہی پارلر کے دروازے کے ساتھ فائز کی گاڑی کھڑی تھی۔ وشما خود کو سنبھالتے گاڑی کی جانب بڑھی۔ وشما کو دیکھ کر فائز گاڑی سے نکل آیا اور اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وشما جھجکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ان دونوں کے درمیان گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فائز نے گہری نظروں سے وشما کو دیکھا۔ وشما دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں اس کا حسن مزید قیامت خیز لگ رہا تھا۔ سفید رنگ میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ وشما نے ایک بار پھر غلطی سے فائز کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فائز جانے کیوں اپنی نظروں کو قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر وشما کے چہرے کی پر ٹک جاتی۔ وشما دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد ہی یہ فاصلہ ختم ہو اور وہ لوگ ہال پہنچ جائیں۔ مگر وشما اس لمحے بری طرح سے چونک گئی جب فائز نے گاڑی گھر جانے والے راستے پر موڑ دی۔ وشما نے حیرانی سے فائز کی طرف دیکھا۔ ہم لوگ گھر کیوں جا رہے ہیں؟ وشما نے ڈرتے ڈرتے فائز سے سوال کیا۔ فائز نے سرد نظروں سے وشما کی جانب دیکھا اور وشما کا اس طرح سے ڈرا ہوا روپ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گھر میں تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، فائز نے مسکراتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ فائز کی بات سن کر وشما کو حیرانی ہوئی تھی۔ کیا سب لوگ ابھی تک گھر میں ہیں؟ وشما نے ایک اور سوال کیا۔ فائز نے اس بار مزید وشما کو سرد نظروں سے دیکھا، مگر اس بار اس نے وشما کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ وشما سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر فائز بالکل خاموش تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ کچھ دیر بعد فائز نے گاڑی گھر کے سامنے روک دی۔ وشما گاڑی سے اتر آئی۔ فائز بھی اپنی جانب کا دروازہ کھولے گاڑی سے اتر گیا۔ فائز کے ہاتھوں میں ایک کالے رنگ کی پٹی تھی۔ وشما نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ فائز نے وشما کے قریب آ کر وہ پٹی وشما کی آنکھوں پر باندھ دی۔ فائز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی، مگر فائز نے وشما کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وشما سنبھل سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ فائز نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ فائز کے ڈر کی وجہ سے اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہی تھی،
अगर वो कोई सवाल कर भी रही थी तो फाइज उसे जवाब नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद फाइज उसे लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ और फिर उसने वशमा के कानों में सरगोशी की थी। अब तुम अपनी आंखों से ये पट्टी उतार सकती हो। अपने बेहद नजदीक वशमा को फाइज की भारी आवाज सुनाई दी। वशमा ने फौरन ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई, मगर सामने का मंजर देखकर वो दम बखुद रह गई। वो इस वक्त फाइज के कमरे में खड़ी थी और फाइज का पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। वशमा ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। फाइज अपनी आंखों में मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। वशमा कुछ समझ ना सकी। वो हैरानी और अचंभे से फाइज की तरफ देख रही थी। ये सब क्या है? वशमा ने थूक निगलते फाइज से पूछा। उसकी बात सुनकर फाइज ने एक अबरू उठाकर उसकी जानिब देखा। ये वही सब है जो कुछ तुम चाहती थी, फाइज ने मुबहम से लहजे में कहा। क्या मतलब है आपकी बात का? वशमा को उस कमरे में घुटन सी होने लगी। वो जल्द अज जल्द इस कमरे से बाहर जाना चाहती थी। फाइज चंद लम्हों तक उसे सर्द नजरों से देखता रहा। उसने वशमा की बात का जवाब नहीं दिया। फाइज, हमें देर हो रही है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वशमा ने फाइज के बराबर में गुजरकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, मगर फाइज ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने से रोका और उसे फूलों से भरे हुए बिस्तर पर धक्का दिया। वशमा इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो औंधे मुंह जाकर बेड पर गिर गई। तुम अब यहां से कहीं नहीं जा सकती, तुम इसी कमरे में बंद रहोगी, फाइज ने वशमा के हसीन सरापे की तरफ देखते कहा। वशमा को अपने पैरों के नीचे से जमीन से रखती हुई महसूस हुई। फाइज, ये आप क्या कह रहे हैं? वशमा बेड से तेजी से उठी और फाइज की तरफ बढ़ी, मगर फाइज अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए उसे देख रहा था। वशमा ने बाहर जाने की कोशिश की। वो फाइज की आंखों में अपने लिए नफरत बखूबी देख सकती थी, मगर फाइज एक बार फिर से उसे अंदर धकेलकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर चुका था। चंद लम्हों तक तो वो कुछ समझ ना सकी, मगर जब तक उसे सारी बात समझ आई बहुत देर हो चुकी थी। फाइज ने उसे इस कमरे में बंद कर दिया था। वशमा दुल्हन बनी पागलों की मानें दरवाजा पीट रही थी, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, वशमा की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। वो दरवाजे को बुरी तरह पीट रही थी, मगर वो दरवाजा बाहर से लॉक था। किसी को भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी, और आती भी कैसे? घर में इस वक्त कोई भी नहीं था। सब लोग हॉल पहुंच चुके थे, जहां अब वशमा का इंतजार हो रहा था, और वशमा दुल्हन बनी इस वक्त फाइज के कमरे में कैद थी। बाहर सोफे पर फाइज इत्मीनान से बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी नजरें गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थीं। वशमा के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी उसके आसाब पर कोई असर नहीं डाल रही थीं। वो बेइंतहा मुतमईन बैठा था। फाइज, प्लीज दरवाजा खोलें, आप कहाँ चले गए हैं? फाइज को एक बार फिर से वशमा की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने नफरत से दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक और सिगरेट जला ली। चारों तरफ एक बार फिर से धुआं फैल गया। फाइज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें। मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वशमा ने रोते हुए फाइज को दुहाई दी थी, मगर फाइज अपने कान बंद किए धुएं के मरगोले के दरमियान बैठा जाने किन सोचों में गुम था। उसे तो वशमा की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। फाइज, खोले मुझे, जाने दें, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर आज मैं ना पहुंची तो हमारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे बाबा किस किस के सवालों का जवाब देंगे? वशमा दरवाजा अपने हिनाई हथेलियों से पीटती हुई बुरी तरह से चिल्लाई थी, यहां तक कि उसे अपनी आवाज भी अजनबी महसूस हो रही थी। फाइज ने नागवारी से कमरे के बंद दरवाजे की सिमत देखा और फिर अपने फोन पर आने वाली मिस्ड कॉल को देखा। कोई 50 के करीब मिस्ड कॉल्स मौजूद थीं,
मगर फाइज ने एक भी फोन नहीं उठाया। वो बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ था, जैसे उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब हॉल में सब लोग परेशान थे। वशमा और फाइज अब तक हॉल नहीं पहुंचे थे। बारात भी पहुंच गई थी, मगर दुल्हन मौजूद नहीं थी। वहां तरह तरह की बातें होने लगी थी। सब लोग सर पकड़े बैठे थे। पार्लर भी पता करवा लिया था, मगर वहां भी वशमा नहीं थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फाइज और वशमा इस वक्त घर में मौजूद होंगे। कहाँ रह गए हैं ये दोनों? अब तक पहुंचे क्यों नहीं? वशमा के बाबा का गुस्से से बुरा हाल था। सभी लोगों के चेहरों से परेशानी अयां थी। यहां तक कि काफी वक्त बीत गया। बारात अब खाली हाथ वापस जाने की तैयारी करने लगी। उन लोगों ने समझाने की कोशिश की, जरूर कोई मसला हो गया है, मगर अब वो लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। सब लोग वशमा के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। अगर आपकी बेटी फाइज से शादी करना चाहती थी तो बेहतर यही थे कि आप उन दोनों की शादी कर देते। आज आप लोगों को इतनी जिल्लत का सामना तो ना करना पड़ता। दूल्हे के बाप ने गुस्से से भरी महफिल में वशमा के किरदार पर हमला किया, मगर अब वहां कोई नहीं था जो वशमा के किरदार की गवाही दे सके। सबके सब शर्मिंदगी के मारे झुक गए थे। मेहमान वापस जाना शुरू हो गए और फिर बारात भी वापस लौट गई। सब लोग परेशान हाल घर वापस आने के लिए निकल खड़े हुए। फाइज ने घड़ी में वक्त देखा और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वशमा हवा की तेजी से उसके कमरे से बाहर निकली। फाइज, ये आपने मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे कमरे में बंद कर दिया? वशमा फाइज की इस हरकत पर हैरत ज़दा सी थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि फाइज उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है। फाइज इत्मीनान से अपनी जगह बैठा वशमा को देख रहा था, जो अपनी आंखों में शोले भरे खड़ी थी, मगर फाइज का इत्मीनान काबिले दीद था, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। सब कुछ फाइज की मर्जी के मुताबिक हुआ था। वो इत्मीनान से अपनी जगह से उठा और वशमा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर वशमा के होंठों पर लगी लिपस्टिक अपने अंगूठे से मिटा दी। इतनी देर में चीख चीख कर और रो रो कर वशमा का हुलिया पहले ही बिगड़ गया था। इसी असना में घर का दरवाज़ा खुला। वशमा के कानों में दरवाजे की आवाज़ आई तो वो तेजी से नीचे गई। सब लोग वशमा को घर में देखकर हैरान थे। वो भी अपनी जगह साकित खड़ी रह गई थी और फिर होश में आते ही तेजी से अपनी माँ की तरफ गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फाइज भी इत्मीनान से अपनी सिगरेट अपने जूतों से बुझाता हुआ उठा और नीचे आ गया। सब लोग हैरत से फाइज और वशमा को देख रहे थे। फाइज, हमने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मगर तुमने हमारा एक भी फोन नहीं उठाया। तुम दोनों घर में क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारा हॉल में इंतजार कर रहे थे। फाइज के बाबा ने गुस्से और हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा। वशमा इस कदर रो रही थी कि उसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। वो बस धुंधली आंखों से फाइज की जानिब देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फाइज ने उसके साथ ये सब क्यों किया। अगर तुमने यही सब करना था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पहले ही हमें बता दिया होता तो तुम दोनों की शादी करवा देते। कम से कम आज हमें इतनी सुबकी और बेइज्जती का सामना तो ना करना पड़ता। मोहसिन साहब ने दुख और अफसोस से अपने बेटे को देखते हुए कहा था। फाइज उनकी बात सुनकर भी खामोश खड़ा रहा। उसने उन्हें कोई भी सफाई देने की कोशिश नहीं की। वशमा ने एक झटके से अपने बड़े बाबा की तरफ देखा। वो तो बिल्कुल गलत समझ रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर वशमा ने फाइज की तरफ देखा। वो खामोश क्यों खड़ा था? कोई सफाई क्यों नहीं दे रहा था? बड़े बाबा, ऐसी बात नहीं है। वशमा ने आगे बढ़कर कुछ बोलने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसका मुंह बंद करवा दिया। रुबीना बेगम ने अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो उससे इस सब की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने तुमसे 1000 बार पूछा था कि तुम इस शादी के लिए राजी हो या नहीं,
और हर बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम राजी हो और अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हो। फिर ये सब कुछ करके हमारे सर पर खाक डालने की क्या जरूरत थी? रुबीना बेगम गुस्से से पागल हुई जा रही थी। आज उनकी इकलौती बेटी ने उन्हें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। भरे मजमे में उनकी बेइज्जती करवा दी थी। लोग उन पर हंस रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। वशमा अपने चेहरे पर हाथ रखे बेख्तियार अपनी मां को देखने लगी। उन्होंने वशमा की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि सीधा वशमा को ही मुजरिम करार दे दिया। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी। हर कोई उसे कसूरवार ठहरा रहा था और यहां वो फायज की मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे जाने दे। उसके घर वालों की इज्जत का सवाल है। वशमा का दिल दुख से भर गया। उसने इल्तिजाई नजरों से अपने बाबा की तरफ देखा, मगर उन्होंने भी वशमा की तरफ से मुंह मोड़ लिया। काशिफ, निकाह ख्वां का इंतजाम करो। इन दोनों का निकाह अभी इसी वक्त होगा। हम अब कोई बात नहीं सुनना चाहते। शादी ब्याह को खेल समझ रखा है। मोहसिन साहब की गुस्से में डूबी हुई आवाज उभरी। वशमा को लगा उसके पैरों की जान निकल जाएगी। वो हैरत और बेयकीनी से अपने घर वालों को देख रही थी। मुझे माफ कर दें छोटे बाबा। वशमा को हॉल में लाने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को ख़त्म करने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं मजबूर हो गया। वरना आप सब जानते हैं कि मैं वशमा से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहता था। अगर मैं इससे शादी करना चाहता तो पहले ही सबको बता देता, मगर वशमा ने मुझे मजबूर कर दिया था। फायज ने वशमा की जानिब देखते सर्द लहजे में कहा। फायज की बात सुनकर वशमा को लगा कि सारा आसमान उसके सर पर गिर जाएगा और अब वो कभी नहीं उठ सकेगी। वो इस कदर हैरत ज़दा थी कि वो फायज की बात सुनकर कुछ ना कह सकी। हर कोई नफरत से वशमा को देख रहा था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं बेटा, इससे निकाह कर लो और हमारी इज्जत बचा लो, वरना इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रुबीना बेगम ने फायज के सामने हाथ जोड़ते रोते हुए कहा था। छोटी मामा कैसी बातें करती हैं। मैं आपका बेटा हूं और इस घर की इज्जत बचाना मेरा फर्ज है। फायज ने उन्हें गले लगाते हुए कहा था। वशमा का सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसके अपनों ने ही उसे पल भर में खुद से बेगाना कर दिया था। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबने उसे मुजरिम करार दे दिया था। वशमा को लगा उसका दिल फट जाएगा। कुछ देर बाद निकाह ख्वां भी आ गया। फायज और वशमा का निकाह कर दिया गया। वशमा की आंखों से आंसू एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रहे थे। वो आज बेबसी के अजब मुकाम पर थी। वो किसी और के लिए दुल्हन बनी थी और किसी और से निकाह कर रही थी। निकाह नामे पर साइन करते हुए वशमा जी जान से कांप उठी। वो जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी जहन्नुम होने वाली है। निकाह के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि वशमा अब तक लाउंज में बैठी थी। फायज भी उसके सामने बैठा था। कोई भी वशमा को फायज के कमरे तक छोड़ने नहीं गया था। अगर कोई फायज के कमरे में चला जाता तो उसे पता लग जाता कि ये सब कुछ किसने किया था, मगर यहां तो कोई वशमा के मुंह से हकीकत सुनने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर बाद फायज अपनी जगह से उठा और वशमा के करीब आकर एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। वशमा भी किसी बेजान लाश की मानिंद उसके साथ घसीटती जा रही थी। फाइज अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे के वस्त में ले जाते वशमा का हाथ एक झटके से छोड़ दिया। वशमा संभल नहीं सकी और ज़मीन पर गिरी, मगर तब भी फाइज को उस पर रहम नहीं आया था। वो दर्जीदा नज़रों से वशमा को देख रहा था और वशमा बस ज़मीन को घूरे जा रही थी। अब किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं था। वशमा फाइज के नाम हो चुकी थी। अब वो उसके साथ जो मर्जी चाहता वो करता, कोई पूछने वाला नहीं था। वशमा के माँ बाप पहले ही वशमा को गलत समझ रहे थे, तो कौन फाइज से पूछने आता।
कि उसने वशमा के साथ क्या सलूक किया। फाइज घुटनों के बल वशमा के सामने बैठा और एक हाथ से उसका जबड़ा सख्ती से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? आज मैंने तुम्हारा वो शौक भी पूरा कर दिया, फाइज ने सर्द लहजे में वशमा से कहा। वशमा ने तकलीफ की शिद्दत से अपनी आंखें बंद की थीं। फाइज की सख्त उंगलियां उसके जबड़े में धंस रही थीं। आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया? मेरे मामा बाबा मुझसे नफरत करने लगे हैं। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वशमा ने रोते हुए दोनों हाथों से फाइज का गिरेबान जकड़ लिया। जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है, मैं यही चाहता था कि सब लोग तुमसे नफरत करें, कोई भी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद ना करे। और देखो वही हुआ जो मैं चाहता था। आज जब सब लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, फाइज ने जहरखन लहजे में कहा। फाइज की बात सुनकर वशमा ने जख्मी नजरों से फाइज की तरफ देखा। आपसे मोहब्बत करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। मैं तो आपको भूल कर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। कर तो रही थी किसी और से शादी, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही थी। फिर आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों मुझे खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा? वशमा अब भी बेयकीन थी। फाइज ने उसका जबड़ा छोड़कर एक झटके से उसे जमीन से उठाया और अपने मुकाबिल खड़ा किया। तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं यहां पल पल तड़प रहा हूं और तुम मुझसे अपनी गलती पूछ रही हो। फाइज ने वशमा को बेड पर धक्का दिया। वशमा ने खौफ से फाइज की तरफ देखा। उसकी आंखों में छाई अजनबियत और बेगानगी ने वशमा का दिल तोड़ कर रख दिया। फाइज, वो सब कुछ एक हादसा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वशमा ने लड़खड़ाते लहजे में फाइज से कहा। मगर फाइज उसकी कोई बात सुन ही कब रहा था, वो तो बस अपनी ही कह रहा था। फाइज ने एक झटके से वशमा का दुपट्टा उसके तन से जुदा किया। दुपट्टा वशमा के सर पर पिनों से सेट किया गया था। फाइज के इस तरह से दुपट्टा खींचने पर वशमा की चीख निकली थी। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, अब हर रोज तुम उस तकलीफ को सहोगी। मैं तुम्हें इस कदर तकलीफ दूंगा कि तुम मौत की दुआएं मांगोगी, मगर तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। फाइज उसकी ज्वेलरी को बेदर्दी से नोचता कहने लगा। तकलीफ के मारे वशमा की आंखों से आंसू रवानी के साथ बह रहे थे। फाइज, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, वशमा ने फाइज के सामने हाथ जोड़ते कहा। उसे फाइज की आंखों में उस वक्त वहशत साफ दिखाई दे रही थी। वशमा का दिल लम्हा लम्हा डूब रहा था। मैंने अपना कमरा तुम्हारे लिए फूलों से सजाया है, इसी की कदर कर लो, फाइज ने मुस्कुराते हुए मगर जहरखन लहजे में कहा। वशमा को लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। उसकी सांसें उसके सीने में घुटने लगी थीं। हर लम्हा उस पर भारी गुजर रहा था। फाइज ने कमरे की लाइट बंद कर दी। वशमा का बस नहीं चल रहा था कि वो यहां से कहीं भाग जाए, मगर उसके भागने की सारी राहें मसदूद हो गई थी। फाइज, मेरे साथ ये जुल्म मत करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं। वशमा बुरी तरह से सकने लगी थी, मगर वशमा के आंसुओं का कोई असर फाइज पर नहीं हुआ। वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर उस पर झुक गया। वशमा ने उसे लाख वास्ते दिए, मगर फाइज का दिल पत्थर का हो गया था। वो वशमा को बुरी तरह से रौंद गया। उस पर वशमा की उसकी आहो बका का कोई असर नहीं हुआ। वो वशमा को उस गुनाह की सजा दे रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। सुबह वशमा की आंख खुली तो फाइज कमरे में नहीं था। वो खुद को संभालती उठकर बैठ गई। रात का मंजर याद करके एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू मोतियों की सूरत टूटने लगे। वशमा समझ गई थी कि अब उसे अपने आंसू खुद ही साफ करने पड़ेंगे। वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और फ्रेश होकर नीचे आ गई। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। फाइज भी उन लोगों के साथ ही बैठा था। वशमा को दुख सा हुआ। किसी ने भी उसे नाश्ते के लिए नहीं पूछा।
वो चंद सानियों तक खोई खोई खड़ी रही। बड़ी मामा की नज़र उस पर पड़ी थी। वशमा, आओ नाश्ता कर लो, उन्होंने वशमा को पुकारा। वशमा अपने ख्यालों से यकदम ही चौंक गई। फाइज के बराबर में कुर्सी खाली थी, मगर वो वहां नहीं बैठना चाहती थी। लेकिन बड़ी मामा ने उसे वहीं बैठने का इशारा किया तो वो ना चाहते हुए भी वहां बैठ गई। बड़ी मामा उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रही थी, वरना सब उससे अनजान बैठे हुए थे। कोई भी वशमा से बात नहीं कर रहा था। घर में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। हर कोई उसे नफरत भरी निगाह से देख रहा था। वशमा से वहां बैठे रहना मुश्किल हो गया। उसकी हलक से एक नवाला भी ना उतर सका। उसने बामुश्किल अपने आंसुओं का गला घोंटा था। सब अजीब नजरों से उसे देख रहे थे, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था वो इंतहाई इत्मीनान से बैठा नाश्ता कर रहा था, यूं जैसे उसे कभी दोबारा नाश्ता नहीं मिलेगा। वशमा खामोशी से उठकर वापस ऊपर कमरे में आ गई और सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। माजी एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। फाइज वशमा के बड़े बाबा का बेटा था और वशमा से 7 साल बड़ा था। उसने हमेशा वशमा को अपनी छोटी बहन समझा। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, मगर जाने कब वशमा के दिल में फाइज के लिए मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, उसे खुद भी पता ना चल सका। वशमा को अपनी मोहब्बत का अदराक उस दिन हुआ जब फाइज की मंगनी, उसकी मोहब्बत उसकी क्लास फेलो से कर दी गई। वशमा जाने कितनी ही देर तक सुन होते दिमाग के साथ उन दोनों को हंसता मुस्कुराता देख रही थी। उसने तो ये कभी सोचा नहीं था कि फाइज उसके अलावा भी किसी और का हो सकता है। उस रात वशमा रोते हुए फाइज के कमरे में गई। वशमा को इस तरह रोते देखकर फाइज खुद भी परेशान हो गया। वशमा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? फाइज ने परेशान होते वशमा से पूछा। आप किसी और से मंगनी कैसे कर सकते हैं? आप तो हमेशा से मेरे साथ थे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। वशमा ने रोते हुए फाइज से अपने दिल की बात कही थी। फाइज का वजूद चंद लम्हों के लिए सन्नाटे की जद में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वशमा उससे मोहब्बत करती है। वशमा, ये तुम क्या कह रही हो? फाइज ने सख्त लहजे में वशमा से पूछा था। फाइज, आप कैसे किसी और के हो सकते हैं? आप ये मंगनी खत्म कर दें। मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। वशमा ने फाइज का हाथ थाम लिया था। फाइज को यकदम ही वशमा पर गुस्सा चढ़ने लगा। वो आधी रात को उसके कमरे में आकर उसे इजहार मोहब्बत कर रही थी। वशमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। फाइज ने दुरुस्त लहजे में वशमा से कहा। वशमा का दिल डूब कर उभरा था। फाइज, मैं तो आपसे प्यार करती हूं। मैं आपके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। वशमा ने रोते हुए फाइज के सीने पर सर रख दिया। फाइज करंट खाकर उससे दूर हुआ। उसे वशमा पर शदीद गुस्सा चढ़ा था। वशमा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस वक्त मेरे कमरे से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। फाइज ने गुस्से से वशमा का बाजू पकड़ते उसे खुद से दूर किया। फाइज, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। वशमा पर फाइज की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अपनी ही कहे जा रही थी। फाइज ने जब्त से मुट्ठियां भींचते हुए वशमा को देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को उसने हमेशा छोटी बहनों की मानिंद प्यार दिया, वो उसकी इन सारी बातों का इतना गलत मतलब अखज़ करेगी। वशमा, तुम्हारे दिमाग में जो भी खन्नास भरा है उसे बाहर निकाल दो। मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं मरियम को पसंद करता हूं और उसी से शादी करूंगा। फाइज ने एक एक लफ्ज पर जोर देते वशमा से कहा। फाइज की बात सुनकर वशमा का दिल कई टुकड़ों में बंट गया। वो भीगी हुई नजरों से फाइज की तरफ देखने लगी और फिर अगले ही पल उसने फाइज का गिरेबान पकड़ा था। फाइज, अगर आप मेरे नहीं हुए तो आप किसी और के भी नहीं हो सकेंगे। मैं मरियम को जान से मार दूंगी। वशमा ने रोते हुए फाइज से कहा।
فائز اس کی اس دیوانگی پر ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ فائز نے وشما سے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر کوئی ان دونوں کو ایک کمرے میں دیکھے اور غلط مطلب لے۔ وشما روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ فائز نے اس کی محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، وہ اس بات کو وشما کا جذباتی پن سمجھ رہا تھا۔ فائز اور مریم کی شادی طے ہو گئی تھی اور وشما پل پل کانٹوں پر بسر کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے فائز کو اپنی محبت کا یقین دلائے۔ فائز اور مریم کی شادی ہو گئی اور وشما روتی رہ گئی۔ فائز کی شادی کے بعد اس نے خود کو بہت حد تک سمجھا لیا تھا کہ اب فائز اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ فائز کو بھول جائے۔ مریم امید سے تھی، ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ فائز اور مریم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ وشما فائز سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئی تھی۔ وہ فائز سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کے سامنے تک نہیں جاتی۔ ہاں، البتہ مریم سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس میں بھی مریم کا ہاتھ تھا۔ وہ گھر میں بور ہوتی تو وشما کے پاس چلی آتی۔ وشما کے دل میں مریم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ مریم سے محبت سے پیش آتی مگر فائز کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ فائز بھی مطمئن تھا کہ وشما اسے بھول چکی ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے۔ انہی دنوں وشما کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ وشما نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ گھر میں وشما کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ وشما، کیا تم ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو؟ کچھ وقت بعد تمہاری شادی ہے، اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے۔ مریم نے اپنے بھاری وجود کو سنبھالتے اس کے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا۔ مریم، تم لوگ شاپنگ کر لو، میری شادی کی۔ وشما نے دھیرے سے مسکراتے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تمہارے بغیر چلے جائیں؟ چلو جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مریم نے وشما کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے کہا تھا۔ مریم، سچ میں میرا دل نہیں کہیں بھی جانے کا، تم لوگ خود چلے جاؤ۔ وشما نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے کہا۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، جلدی اٹھو۔ مریم نے وشما کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا اور اسے لے کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ مریم، میں کہہ رہی ہوں تم لوگ چلے جاؤ، میرا سچ میں کہیں جانے کا دل نہیں۔ وشما نے مریم کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا مگر مریم اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے لیے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسی اثنا میں مریم کا پاؤں بری طرح سے لڑکھڑایا۔ وشما نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر مریم خود اپنے بھاری وجود کو سنبھال نہ سکی اور سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے کی طرف آئی۔ وشما کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ مریم خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ وشما کی چیخ سن کر سب لوگ کمرے سے باہر آئے۔ فائز بھی اس وقت اپنے کمرے میں تھا، وہ بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے سیڑھیوں پر کھڑی وشما پر پڑی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیڑھیوں سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ فائز نے ناسمجھی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر وہ اگلا سانس نہیں لے سکا۔ مریم کا خون میں ڈوبا وجود سیڑھیوں سے نیچے پڑا تھا۔ فائز اندھا دھند مریم کی طرف بھاگا۔ اس نے مریم کو سیدھا کیا۔ مریم بہت ہلکے سانس لے رہی تھی۔ فائز اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا سیدھا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال میں کھڑا تھا۔ مریم کو فوراً ہی آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ فائز باہر کھڑا بے صبری سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور فائز سے مزید خون کی بوتلوں کا بندوبست کرنے کو کہا۔ فائز اسی لمحے باہر بھاگا۔ اس نے مزید خون کی بوتلوں کا بندوبست بھی کر دیا تھا مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے بچے کی جان بچانا بہت مشکل ہے۔ فائز کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر کے سارے افراد اسپتال میں جمع ہو گئے۔ وشما بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ بلا شبہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی مگر فائز نے اسے جن نظروں سے دیکھا
वो उसे जमीन में गाड़ने के लिए काफी थी। कुछ देर मजीद गुजर गई। मरियम का और उसके बच्चे का कुछ पता नहीं था। फाइज बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था। डॉक्टर फिर से बाहर आई। आई एम सॉरी, हम आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को नहीं बचा सके। सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपके बच्चे के सर पर चोट आई थी और आपकी वाइफ का बहुत खून जाया हो गया। डॉक्टर ने अफसोस का इजहार किया। फाइज को लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई है। उसकी बीवी और उसका बच्चा उसे छोड़कर जा चुके थे। उनके घर में कयामत आ गई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था। फाइज की जिंदगी से खुशियां रूठ गई थीं। फाइज ने डॉक्टर की बात सुनकर वशमा की तरफ देखा। वशमा के सफेद पड़ते चेहरे के साथ डॉक्टर की बात सुन रही थी। फाइज के जहन में वशमा के अल्फाज गूंजने लगे, मैं उसे जान से मार दूंगी। फाइज को लगा वो अपनी जिंदगी में सब कुछ हार गया है। उसने अपने हाथों से मरियम और अपने बच्चे को दफनाया था। सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया। कमरे का दरवाजा खुला और फाइज कमरे में दाखिल हुआ। वशमा अपनी सोचों से बाहर आई। उसने सहम कर फाइज की तरफ देखा। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। गुजरी हुई रात मैंने तुम्हें तुम्हारी हैसियत और औकात बहुत अच्छे से समझा दी है, इसलिए बेहतर है कि मेरे साथ रहना है तो अपनी हद में रहना। मैंने तुमसे निकाह जरूर किया है, मगर मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। फाइज ने वशमा का बाजू सख्ती से थामते उसे उसकी औकात याद दिलाई। वशमा खामोशी से फाइज को देखने लगी। उस रोज के बाद फाइज उससे शदीद नफरत करने लगा था। वो वशमा को ही मरियम का कातिल समझता था, इसीलिए वो वशमा से नफरत करता था। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस दुनिया से चले गए, और तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें आराम से अपनी जिंदगी में खुश रखूंगा? मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। फाइज ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था। फाइज ने उसके साथ जो करना था वो कर चुका था। अब अपनी सफाई देने का कोई फायदा नहीं था। वो उसे छोड़कर कमरे से बाहर जा चुका था। वशमा के पास सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के और कुछ नहीं था। अगले दिन उन दोनों का वलीमा कर दिया गया और वलीमे के अगले रोज फाइज बाहर मुल्क चला गया। वशमा नहीं जानती थी कि वो कितने दिन के लिए गया है। उसने तो वशमा को बताना भी जरूरी नहीं समझा था। बस उसे तन्हा सबके सवालों का और सबकी नजरों का सामना करने के लिए छोड़कर चला गया। शुरू में सब लोग वशमा से उखड़े उखड़े से रहे, मगर वशमा बिल्कुल खामोश थी। उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया। बस अब फर्क इतना पड़ा था कि सब लोगों का मूड उससे बहुत हद तक बेहतर हो गया था। अगर सब गुस्सा नहीं थे तो किसी ने उसे माफ भी नहीं किया था, और वशमा के लिए यही बहुत था। फाइज रोज ही घर फोन करता था, मगर एक बार भी उसने वशमा को फोन करके उसकी खैरियत मालूम नहीं की। वो तो वशमा से निकाह करके उसे यकसर फरामोश कर बैठा था। वशमा ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया जब वो फाइज की मोहब्बत को अपने दिल से खुरच कर निकाल चुकी थी। जब फाइज उसे मिला था, मगर इस सूरत मिला था कि वो उससे नफरत करता था और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसे अपनी बीवी और बच्चे का कातिल समझता था। वो कैसे फाइज से कोई उम्मीद लगा सकती थी? वशमा का दिल खाली सा हो गया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने रेत का महल बन गया। चंद दिनों से वशमा को अपनी तबीयत खराब सी महसूस हो रही थी। बैठे बैठे उसे चक्कर आने लगते। उसका दिल खराब सा रहने लगा, मगर वो अपनी तरफ तवज्जो ही कब देती थी। आखिरकार 2 माह बाद फाइज वापस आया। सब लोग रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जब फाइज अचानक ही आ गया था। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, मगर वशमा बस खाली खाली नजरों से उसे देखती रही। फाइज ने भी बस एक अचपटी सी नजर वशमा पर डाली और फिर अपनी नजरें फेर ली। फाइज वहीं बैठकर सबके साथ बातें करने लगा।
मगर वशमा उठकर अपने कमरे में आ गई। फाइज सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था और अब वो सबको उनके गिफ्ट दे रहा था। वशमा जानती थी कि फाइज उसके लिए कभी कुछ नहीं लेकर आएगा, क्योंकि वो तो इससे नफरत करता है, उसे कातिल समझता है। कुछ देर बाद फाइज कमरे में आया। वशमा की तबीयत पहले ही खराब थी। वो नढाल सी सोफे पर बैठी हुई थी। फाइज ने कमरे में दाखिल होकर गहरी नजरों से वशमा को देखा। उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। फाइज को उसकी ये हालत देखकर अचंभा सा हुआ। उसी लम्हे एक बार फिर से वशमा का दिल खराब हुआ और वो अपनी जगह से तेजी से उठी और अपने मुंह पर हाथ रखते वॉशरूम की जानिब बढ़ी। फाइज ने हैरानी से वशमा को देखा। कुछ देर बाद वशमा तौलिए से अपना मुंह साफ करती बाहर आई थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, मगर फाइज ने उसकी तबीयत नहीं पूछी। उन दोनों के दरमियान अजनबियत बरकरार थी। वशमा एक बार फिर से सोफे पर बैठ गई और फाइज फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो वशमा सोफे पर बैठे बैठे सो रही थी। लगता है वाकई में तबीयत खराब है, फाइज ने अपने दिल में सोचा था, मगर उसे इस बात से क्या लेना देना। वो कंधे उचकाता बेड की जानिब बढ़ गया। सारी रात वशमा की तबीयत खराब रही थी। फाइज की भी बार बार आंख खुल रही थी। जाने वशमा को क्या हुआ था। सुबह उसकी आंख खुली तो वशमा सोफे पर बैठे बैठे सो रही थी। फाइज फ्रेश होकर आया तो जब तक वशमा भी उठ गई, मगर अब भी वो नढाल सी थी। कब से तुम्हारी तबीयत खराब है? फाइज ने वशमा की तरफ देखते पूछा। मैं ठीक हूं, वशमा ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। दवाई ली क्या तुमने? डॉक्टर के पास चली जाती किसी के साथ। फाइज ने उसकी बात को नजरअंदाज करके पूछा। आपने मुझे इस काबिल छोड़ा ही कब है कि कोई मेरी फिक्र करे? अगर मैं इस घर में मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वशमा ने बेतासुर लहजे में कहा। मगर फाइज ने ठुठक कर उसे देखा। ये सच था कि वशमा के अपने माँ बाप तक ने उससे नाता तोड़ लिया था, तो वो कैसे किसी को अपनी तबीयत के बारे में आगाह करती। तैयार हो जाओ, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फाइज ने हतमी लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। वशमा सर झटक कर रह गई। वो दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे। मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। वशमा को लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। ये तो उसने कभी सोचा नहीं था। उसने डरते डरते फाइज के चेहरे की तरफ देखा, जो बेतासुर से चेहरे के साथ बैठा था। ये खबर सुनकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। सारे रास्ते दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। जाने क्यों वशमा कांप रही थी। उसके हाथों की कपकपाहट फाइज की नजरों से छुपी नहीं रह सकी। फाइज उसे घर के बाहर ही छोड़कर जा चुका था। वो बमुश्किल खुद को संभालती कमरे में आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद फाइज भी कमरे में आया और उसकी दवाएं साइड टेबल पर रख दी। वशमा घबराकर अपनी जगह से खड़ी हुई। फाइज ने हैरानी से उसे देखा, जाने वो क्यों घबरा रही थी। मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा था, वो मरियम खुद गिर गई थी, वशमा ने घबराए घबराए से लहजे में कहा। फाइज के माथे की रगें तन गई थी। वशमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आप समझते हैं कि मैंने जानबूझकर आपके बच्चे को मारा है, इसलिए अब आप मेरे बच्चे को भी मार देंगे? वशमा बुरी तरह रोने लगी। फाइज ने लब फेंचकर उसे देखा। फाइज के दिल को कुछ हुआ था। उसी वक्त उसके दिल ने गवाही दी कि ये लड़की हरगिज भी उसके बच्चे को नहीं मार सकती। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ था। मैं सच कह रही हूं, मैं बस आपसे मोहब्बत करती थी, मगर उस मोहब्बत के लिए मैं कभी किसी को मारने का सोच नहीं सकती। मैं सच कह रही हूं, वशमा ने अपने दुपट्टे का पल्लू सख्ती से जकड़ते कहा। फाइज के दिल को कुछ हुआ था। ये लड़की ऐसी तो हरगिज नहीं थी जैसी वो अब बन गई थी। इतनी डरी डरी सहमी हुई सी, और ऊपर से वो ये समझ रही थी कि फाइज उसके बच्चे को मार देगा। हाँ, फाइज ने बदला लेने के लिए उससे शादी की थी,
मगर क्या वो वशमा से बदला ले सकता था? अपने बच्चे को खुद ही नुकसान पहुंचा सकता था। फायज ने अपने दिल को टटोला तो उसे हर सवाल का जवाब नफी में मिल रहा था। वशमा बुरी तरह पसीने में नहा गई थी। उसका जिस्म कांप रहा था। वो अपनी कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। फायज ने यकदम ही खुद को लानत मलामत की और फिर आगे बढ़कर उसने वशमा को खुद से लगा लिया। यकदम ही वशमा साकित हो गई। उसने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। फायज उसे मोहब्बत से अपने सीने से लगाए के कहने लगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि खुद ही अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दूं। बेशक मैं तुम पर गुस्सा था, मगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। फायज ने उसका माथा चूमते हुए कहा। वशमा मजीद फूट फूट कर रोने लगी। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैंने तो सिर्फ आपसे मोहब्बत की थी। क्या इतनी बड़ी सजा थी? वशमा फायज के सीने में मुंह छुपाए मजीद फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ कर दो वशमा, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। फायज ने खुले दिल से माफी मांग ली थी। वशमा मजीद रो दी। आज उसकी मोहब्बत मुकम्मल होकर उसे मिल गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।